Hello, my dear students, and welcome to the channel of Imavate Academy. In this lecture, I'm going to start the 6th chapter of physics, heat and energy for class 9th. A lot of requests have come to teach this chapter, and therefore today I am going to start this particular chapter. So you see there are two terms in the name of the chapter, heat and energy. In fact, heat is a form of energy. Okay, so there are different forms of energy: sound energy, light energy, chemical energy, and similarly there is a form of energy which is known as heat energy. There is one more term which we have to study in this chapter, that is temperature. Temperature is very closely related to heat, but temperature is not heat. So we have to understand this, and I will explain you what is the difference between temperature and heat. Although both of them may appear that they are same, ऐसा हमें लग सकता है कि टेम्परेचर ही तो हीट है, ऐसा नहीं है. टेम्परेचर और हीट अलग चीजें होती हैं, बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, and we will see how they are different, and we will also compare it with a real life example of something else so that you will understand the basic difference between temperature and heat. Let us start with the definition of heat. Okay, so write down heat ka definition. Heat, the total energy, the total internal energy of molecules constituting the body is the amount of heat present in the body. So what did I write? कोई भी एक body है. Suppose, let us consider this body. This body is made up of molecules. If it is a solid body, the molecules are very closely packed. If it is a liquid body, the molecules are little far away. And if it is a gaseous body, if it is a gas, then we know that the molecules are very far from each other. So let us consider that this is a solid body and the molecules are closely packed, right? So you can see how have I drawn? The molecules are closely packed. We all know, we have studied it in class, you must have studied it in class 6, that according to kinetic theory of matter, these molecules or these particles possess kinetic energy. है ना? These particles are always in the state of vibration. पढ़े होगे कि ये continuously अपने ही position पर vibrate कर रहे हैं, मतलब हर एक molecule vibrate कर रहा है. Although that vibration is too small to be seen with the naked eyes, we can't see it with the naked eyes. तुम जिस पेन से लिख रहे हो, उस पेन के molecules vibrate कर रहे हैं. तुम जिस कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन में इस वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल फोन के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फील दैट वाइब्रेशन because the vibration is very small. The amplitude of the vibrations is very small, but vibrate तो कर रहे हैं. और ये जो वाइब्रेशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस कर रहे हैं, तभी वो वाइब्रेट कर रहे हैं. कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करता है. ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने माइंड में भी नोट डाउन कर लो कि एनी बॉडी इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज बिकॉज of the kinetic energy which is present in it. So we can say that the energy possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy. तो ये मोशन ही तो है वाइब्रेशन. तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी भी है. जब एकदम अगर हम लोग एकदम माइन्यूट लेवल में उसको ऑब्जर्व करें तो एक मॉलिक्यूल को, चलो मैं ऑब्जर्व कराता हूं तुमको. ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक बार इधर वाइब्रेट कर रहा है, एक बार इधर वाइब्रेट कर रहा है. वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन. तो जब वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब सेंटर पोजीशन पर है, जिसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं, तब इस स्थिति में इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. और जब वो इस एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया, तब उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, इधर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है. और फिर जब वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में गया, दो एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, एक बार इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा. वाइब्रेट तो ऐसे ही होता है,
इसी तरह वाइब्रेशन होता है, एक मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से दूसरे वाले एक्सट्रीम, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मीन्स लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट। तो जब वो इस एक्सट्रीम में भी है तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी चीज हो रही है। एक बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बैक टू काइनेटिक एनर्जी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब वो किसी एक मिडिल पोजिशन में है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया इन द मिड वे, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में कहीं है, तो उस स्थिति में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रेजेंट है। तो ये जो टोटल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलके जो टोटल एनर्जी होता है, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तुम्हारे बुक में तुम्हें उतने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, ये तुम्हारे कॉन्साइज में उतने डेप्थ में तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम्हें उतना डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है, तुम्हें ये जो टर्म है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया ताकि तुम समझ सको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी। ऑल्दो इन योर बुक, in your syllabus, you don't have to study at that depth कि क्या एक्चुअली हो रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। सो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन बेसिकली, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द sum of the total potential and kinetic energy possessed by the molecules. इनफैक्ट उसे ही हम हीट बोलते हैं, उसे ही हम हीट बोलते हैं। इसका मतलब हीट कोई अलग तरह का एनर्जी नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही एक रूप है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, जिस बॉडी से ये मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल से ये बॉडी बना है, उन मॉलिक्यूल्स का टोटल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द बॉडी, उसे ही हम हीट बोलते हैं। तो हम जानते हैं एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। The SI unit of energy is joule. Okay, you must have learned it in lower class. In class 8 also there is a chapter on energy, so you must have learned in class 8 that the SI unit of energy is joule. तो heat भी तो energy है, तो heat का भी SI unit joule ही होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता क्योंकि ये energy है। So I'm erasing this diagram. This was just for explanation purpose. ये एग्जाम से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। Now here, before I write the SI unit of heat, one more sentence I will add that is very important. It flows from, it का मतलब heat, it का मतलब heat, heat flows from a hot body to a cold body. एक गरम ऑब्जेक्ट से, गरम बॉडी से ठंडे ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो करता है। Never heat will flow from cold body to hot body. Always heat will flow from hot body to cold body. यहां पे हमें एक चीज समझनी होती है कि हॉट बॉडी का मतलब क्या है। हॉट बॉडी का मतलब क्या है? मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं हॉट बॉडी का मतलब क्या है, तो जनरली बच्चे बोलेंगे सर जिस बॉडी में ज्यादा हीट है वो हॉट बॉडी है। यही बोलोगे, तुम लोग भी बोलोगे। हॉट बॉडी मीन्स जिस बॉडी में ज्यादा हीट है वो हॉट बॉडी है। कोल्ड बॉडी मीन्स जिस बॉडी में कम हीट है वो कोल्ड बॉडी है। लेकिन एक्चुअल ये डेफिनेशन हॉट बॉडी का नहीं होता है। मैं थोड़ी देर बाद जब मैं हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, तब तुम्हें क्लियर होगा कि हॉट बॉडी का एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी में ज्यादा हीट है। हॉट बॉडी का मतलब है कि इट हैज हायर टेम्परेचर, इट इज एट अ हायर टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हायर है, तब वो हॉट बॉडी है। तो तुम बोलोगे सर हायर टेम्परेचर में है इसका मतलब तो उसमें ज्यादा हीट है। बात तो सेम ही है ना, चाहे मैं बोलूंगी उसमें ज्यादा हीट है, चाहे मैं बोलूं इट इज एट अ हायर टेम्परेचर, क्योंकि हीट और टेम्परेचर तो सेम होता है सर। तुम लोग ऐसा बोलोगे, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर में है उसमें ज्यादा हीट हो। क्यों, दिमाग का बत्ती गुल हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी में हायर टेम्परेचर हो उसमें हायर हीट भी हो। ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर हाई हो किसी एक दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट कम हो।
Yes, I will explain you that thing. तो इसीलिए this is quite possible that there are two bodies, body A and body B. ठीक है, दो बॉडीज है. इस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, और बी का मान लेते हैं कि लोअर टेम्परेचर है. तो जनरली क्या होता है, अगर ए हायर टेम्परेचर है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट भी हाई ही होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है. इसीलिए हमारा भी एक मन में आइडिया बैठ गया है कि टेम्परेचर हाई है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट भी हाई होगा. लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज. हायर टेम्परेचर है ए में, बी इज एट अ लोअर टेम्परेचर. दिस इज पॉसिबल दैट ए हैज लोअर अमाउंट ऑफ हीट, हीट कंटेंट इज लो, and B has higher heat. The heat content is higher in B. Still, the temperature is lower because of many other factors that we will study later. And how heat and temperature are different, that I will explain after some time. अगर तो इन दोनों में मैं किसको बोलूंगा हॉट बॉडी? किन दोनों को हॉट बॉडी बोलना चाहिए? मैंने अभी लिखा है हॉट बॉडी का मतलब द बॉडी विच इज एट अ हायर टेम्परेचर. तो ए को बोलूंगा हॉट बॉडी, ऑल्दो इट हैज लोअर हीट, बट टेम्परेचर जिसका हाई है उसको मैं बोलूंगा हॉट बॉडी, और बी को बोलूंगा कोल्ड बॉडी, क्योंकि बी का टेम्परेचर लो है. तो दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में रख देता हूं, कांटेक्ट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली हीट फ्लो होगा. कहां से कहां हीट फ्लो होगा? ए से बी में हीट फ्लो होगा कि बी से ए में हीट फ्लो होगा? Heat will always flow from higher temperature to lower temperature, means hot body to cold body. So heat will flow from A to B. Heat will flow from बॉडी ए टू बॉडी बी, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो करता है. हॉट बॉडी का मतलब विच इज एट अ हायर टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी का मतलब विच इज एट अ लोअर टेम्परेचर. तो हायर टेम्परेचर में हमारा बॉडी ए है, लोअर टेम्परेचर में बॉडी बी है. सो ए से बी हीट फ्लो करेगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू how this is analogous to something else. You will understand better. How is this possible, sir? You see, you will understand. Suppose you have a container. Look at the figure. And यहां पर एक दूसरा कंटेनर है, ये पाइप से कनेक्टेड है. दूसरा कंटेनर को देखो, मोटा सा कंटेनर है. द फर्स्ट कंटेनर इज narrower, the second container is wider container. I hope you can understand. So you see, suppose this is container A, this is container B, and say there is a tap. First of all, there is a tap. There is a tap which is, blocking the movement of water from one container to another container. पहले मैंने इस टैप को बंद करके रखा हुआ. तो let us say that container A का water level यहां तक है. This is the level. And container B का water level से यहां तक है. ध्यान से देखो तो लेवल ऑफ वाटर और एक होता है अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको मैं बोल सकता हूं क्वांटिटी ऑफ वाटर. कितना है क्वांटिटी ऑफ वाटर, या बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो भी बोल सकता हूं. दो अलग अलग चीजें हैं. लेवल ऑफ वाटर अलग है, अलग चीज है, और अमाउंट या क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ वाटर अलग है. तो तुम मुझे बताओ लेवल ऑफ वाटर किसमें हायर है? इन दोनों कंटेनर में लेवल ऑफ वाटर किसमें हायर है? ऑब्वियसली दिख रहा है कि जो ए कंटेनर है उसका लेवल, वाटर लेवल हायर है ए में. सो कंटेनर ए हैज हायर लेवल ऑफ वाटर. लेकिन अगर मैं बोलूं क्वांटिटी ऑफ वाटर किसमें हायर है, तो बी में देखो अमाउंट या क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का मैं बात करूं तो बी में ज्यादा पानी है, ज्यादा वॉल्यूम में पानी है.
सो वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ वाटर इज हायर इन बी। ये जो लेवल ऑफ वाटर है ये टेम्परेचर के जैसा है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अमाउंट ऑफ हीट के जैसा है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि किसी कंटेनर में लेवल ऑफ वाटर ज्यादा हो लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर कम हो, जैसे कंटेनर ए में है। दैट मींस लेवल ऑफ टेम्परेचर हायर हो लेकिन अमाउंट ऑफ हीट कम हो। और कंटेनर बी में देखो, लेवल ऑफ वाटर कम है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। इट इज वेरी सिमिलर टू द टेम्परेचर इज लोअर बट अमाउंट ऑफ हीट इज हायर। तो इन दोनों में अगर ये टैप को मैं खोल देता हूं यहां पर, इफ आई ओपन दिस टैप, so now it has been seen experimentally, and you can also say it very easily, that water will flow from A to B and not B to A, because water always flows from higher level to lower level, higher level to low level. तो A से B water flow करेगा, A से B water flow करेगा। ऐसा मत सोचना कि B में ज्यादा पानी है, क्वांटिटी ज्यादा है तो B से A, नहीं। लेवल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर किस पे डिपेंड कर रहा है? लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लेवल जहां ज्यादा हाई है, हायर लेवल से लोअर लेवल, बिल्कुल उसी तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगा। इसीलिए टेम्परेचर का डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा, वहां लिखाऊंगा टेम्परेचर डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ हीट। तुम लोग भी बुक में देख लो, टेम्परेचर के डेफिनेशन में लिखा हुआ है टेम्परेचर डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ हीट। हीट का डायरेक्शन टेम्परेचर डिटरमिन करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट डिसाइड नहीं करता कि हायर हीट से लोअर हीट जाएगा, जरूरी नहीं है। लोअर हीट से भी हायर हीट जा सकता है, जैसे यहां लोअर क्वांटिटी ऑफ वाटर से हायर क्वांटिटी ऑफ वाटर में गया, लेकिन हायर लेवल से लोअर लेवल में गया। सो नाउ द पिक्चर इज क्लियर। ये एग्जांपल से ना तुम लोग समझ गए होगे कि हीट और टेम्परेचर कैसे अलग अलग होते हैं। अभी हम क्या करेंगे? एसआई यूनिट लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इसीलिए इतना टाइम लगाकर एक्सप्लेन किया, तुम लोग समझ गए होंगे। ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं हीट और टेम्परेचर के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो विल एक्सप्लेन यू द थिंग प्रॉपरली। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। इसे हम बोलते हैं जूल, जे, कैपिटल जे। जब हम फुल वर्ड लिखते हैं तो जे को स्मॉल लिखेंगे, बट व्हेन आई राइट ओनली जे, द शॉर्ट फॉर्म, द जे मस्ट बी कैपिटल। Other units of heat are also there. Very important topic. Other units of heat that we have to learn, and that is very important place where a lot of questions can be asked. So, SI unit of heat is joule. You can write one more line below it. The CGS unit. ये भी लिख लो, उसके बाद हम other units of heat करेंगे। CGS unit of heat, देखो हीट बोले तो एनर्जी, तो एनर्जी का जो सीजीएस यूनिट होता है वही होगा, विच इज अर्ग। ठीक है। और क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप लिख लेना अच्छा है हमारे लिए। इसको मैं इरेज ही करके लिखता हूं, बाद में इसको लिखूंगा। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आराम से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग? गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ हीट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। ये इक्वेशन तुम्हें लिखना है। अब हम लिखेंगे अदर यूनिट्स ऑफ हीट। जूल हो गया, अर्ग हो गया। अब कैलोरी एंड किलो कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी एंड किलो कैलोरी, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ हीट। तो कैलोरी, यहां पे देखो किलो लग गया, किलो का मतलब 1000। सो 1000 कैलोरीज जब होता है तो उसे ही हम बोलते हैं 1 किलो कैलोरीज। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, किलो का मतलब 1000। सो 1 किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरीज। ठीक है ना। 1 कैलोरी का क्या डेफिनेशन है तो वो हम लोग पढ़ेंगे
वो अलग से हमें पढ़ना है 1 कैलोरी का डेफिनेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल डू इट लेटर। और अभी हम इस डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी पे नहीं जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कैलोरी और जूल के बीच क्या रिलेशन है ये हम लोग लिखेंगे। और ये इक्वेशन से बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया है कि कैलोरी और जूल के बीच क्या रिलेशन है। ये बोर्ड्स आईसीसी में भी क्वेश्चन आता है इस पर, और तुम्हारी ये 9th में भी आ सकता है, इवन आता भी है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स होता है, जिसे हम कभी कभी राउंड ऑफ करके 4.2 जूल्स भी बोल सकते हैं। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 joules. This is a very very important, but you have to be very careful. कई बार confusion हो जाता है बच्चों को, बच्चे ऐसा सोच लेते हैं 1 joule is equal to 4.2 calories। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये तुम्हें कंफ्यूजन, गलती यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हीट के बारे में। अब हम आते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दिया है। वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यही टेम्परेचर है दैट डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ हीट। किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये बात हमें, इस पॉइंट को डेफिनेशन में हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो पहले मैं ये लिखाता हूं कि टेम्परेचर क्या है। बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी which tells us the degree of hotness or coldness of a body। एक बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसकी डिग्री, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, कितना गर्म है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन द बॉडी। अमाउंट ऑफ हीट को मेजर नहीं कर रहा है, ये कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर कर रहा है। हॉटनेस एंड हीट आर डिफरेंट थिंग्स। वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसकी मात्रा को मेजर करता है टेम्परेचर, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू द लेवल ऑफ वाटर, कितना लेवल ऑफ पानी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट डिटरमिन्स, मतलब टेम्परेचर डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन two bodies at different temperatures are placed in contact। जब दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर के हैं, उनको हमने कांटेक्ट में रख दिया है, तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऑब्वियसली मैंने बता चुका हूं, मैं बता दिया हूं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करेगा। तो वही चीज किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इट का मतलब टेम्परेचर। तो ये एमसीक्यू के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग determines the flow of heat? Option A, the amount of heat in the body. The temperatures of the bodies. Both heat and temperature of the bodies. And option D, none of the above. तो यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि बोथ पे होता है क्या, दोनों पे नहीं। ओनली एंड ओनली टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि ओनली टेम्परेचर डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। आज इस लेक्चर में यहां तक ही हम पढ़ेंगे। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग, दोज हु आर व्यूइंग माई दिस वीडियो ऑफ यूट्यूब, अगर 9th में पढ़ रहे हो अभी, और 10th में जो आज से कुछ ही महीनों बाद 10th में चले जाओगे तुम लोग, 10th में मेरे रेगुलर 1 year लॉन्ग ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन कोर्स
रेगुलर बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, जो 1 साल भर का कोर्स होगा जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पूरे सिलेबस को रेगुलर डेडिकेटेड रूटीन होगा क्लासेस करूंगा लाइव क्लासेस में, उस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका नोटिफिकेशन मैं 1 दिसंबर 2021 को मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, मतलब कल डाल दूंगा, और इसका एनरोलमेंट कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो वाइज ऐप में उसमें एनरोल करना है, वो कल जो मैं वीडियो डालूंगा कैसे एनरोलमेंट करना है सब पता चल जाएगा। और अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, 1 दिसंबर के बाद देख रहे हो कभी, तो भी एनरोलमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होगा 19 मार्च 2022। तो 19 मार्च 2022 के पहले तुम्हें एनरोल करना है। अब ये मत सोचना कि काफी दूर का समय है, सीट्स भर जाएंगे तो फिर तुम्हें जगह नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स। तो ये गलती मत करना कि सर अभी तो दिसंबर है हमारा, तो 19 मार्च आज से 2-3 महीने बाद है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इस इल्यूजन में रहोगे सो यू मे मिस द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ द सीट्स आर फुल यू मे नॉट गेट अ सीट अगेन। सो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये होगा। तो एनरोलमेंट करके रखना, इट्स फ्री एनरोलमेंट, एनरोलमेंट होके रहेगा, यू विल just your seat will be reserved. So I hope you all will do it at the earliest. Okay, so we will meet in the next lecture. Have a nice day. God bless you everyone.